afternoon to everyone. In this lecture, I am going to explain to you all about the revenue ratios and combined ratios. So let me start. Revenue ratio, revenue and combined ratios. So what do you mean by revenue ratios? As I had told you in the last lecture also, revenue ratios are those are comparison. Revenue ratios are are comparisons made between two or more variables या items from the revenue statement. जब हम एक या कंपैरिजन के लिए मिनिमम हमें दो चीजें चाहिए, तो दो या दो से ज्यादा चीजें लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, तो उसको हम रेवेन्यू रेशो बोलते हैं. कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द रेवेन्यू स्टेटमेंट. सेम वे, what are combined ratios? When we make the comparison between both balance sheet as well as revenue statement by taking two or more variables from them, it is known as combined or composite ratios. So now firstly, let us discuss the revenue ratios. So first revenue ratio, what is there is gross profit ratio. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हम क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं नेट सेल्स के साथ. ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं नेट सेल्स के साथ, एंड दिस इज द परसेंटेज रेशो. So this is the formula of gross profit ratio. You all know gross profit कैसे मिलता है? जब हम net sales में से gross profit कैसे मिलता है? How do you get the gross profit? Gross profit we have today seen in the format. Gross profit is net sales minus cost of goods sold. This is gross profit. And cost of goods sold क्या है? Cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases जिसमें से हमने रिटर्न्स माइनस किया है, प्लस ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज सिंपल एग्जाम्पल कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं. तो जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में नेट सेल्स के साथ डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई बाय 100, वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. Now second one, this is a percentage ratio. Now second what we have is known as the operating ratio. Next one what we have is the operating ratio. So operating ratio का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस divide by net sales into 100. So here मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Cost of goods sold I have written in short form. I will write here also. हम लोग cost of goods sold को short form में कैसे लिख सकते हैं? COGS, cost of goods sold. So ये जब करेंगे तो we will get the this one operating ratio. Cost of goods sold कैसे मिलता है? ऊपर दिया है मैंने
ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे मिलता है, दैट आई विल राइट हियर. वी हैव ऐसे डन द सम्स इन द मॉर्निंग. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आई एम सॉरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स office and admin expense, office and administrative expense plus selling and distribution expense plus finance charges. Finance charges is equal to operating expense divided by net sales into 100. Now, what is net sales? Do you want me to write net sales also? This is also there in the format. Net sales is equal to gross sales, minus returns and अलावेंसेस. जब रिटर्न्स माइनस करते हैं सेल्स में से तो हमें मिलता है नेट सेल्स. तो दिस इज ऑल्सो डन. नाउ यही जो हमारा ऑपरेटिंग रेशो है, जिस यहाँ पे ऐसे भी कभी पूछ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशो. अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला रहेगा? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100. If individual expense ratio is asked, selling and distribution expense ratio अगर पूछेंगे, selling and distribution expense ratio अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो द फॉर्मूला विल बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100. ऑल ऑफ देम आर परसेंटेज रेशियो. सब आंसर हमें परसेंटेज में ही मिलेगा. देन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइनेंस एक्सपेंस रेशो पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फाइनेंस चार्जेस डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100. Am I audible? फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशो पूछेंगे तो फाइनेंस चार्जेस अपॉन नेट सेल्स into 100. दिस विल बी. अगर इंडिविजुअल एक्सपेंसेस पूछा तो ऐसे हो सकता है. नाउ व्हाट वी विल डू, now the next ratio can be, I have already done that expense ratio, मैंने ये भी बता दिया ऑपरेटिंग रेशियो में ही. now the next one is operating profit ratio. What is operating profit ratio? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100. Now how do you get the operating profit? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में, द फॉर्मेट में हमने देख सकते हो तुम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट में जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं
तब हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमें अगर बिजनेस को जानना है कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है बिजनेस का, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से पता चलेगा। अगर ऑपरेटिंग रेशो क्या है, ऑपरेटिंग जो खर्चा है बिजनेस में वो कितना परसेंटेज है जानना है, तो ऑपरेटिंग रेशो निकाल सकते हैं। इफ द बिजनेस वांट टू नो द स्पेसिफिक एक्सपेंस का परसेंटेज कितना है, जैसे ऑफिस एक्सपेंस का परसेंटेज कितना है, तो ऑफिस एक्सपेंस रेशो से आए पता चलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है, उसका क्या परसेंटेज है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशो से पता चलेगा। लाइक दैट व्हाट वी कैन डू, हमें अगर बिजनेस को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द profit and loss account, these ratios will help them to take a decision. इसके बाद दो और रेवेन्यू रेशियोज है, दो और रेवेन्यू रेशियोज है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो में वी कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, आई विल राइट हियर नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट, दिस वी कैन अंडरस्टैंड बाय टू टर्म्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है दैट इट शुड बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो इसके साथ भी निकाल सकते हैं नेट सेल्स इंटू 100 इंटू 100। नाउ व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स is what? It is operating profit add दो चीज, एक तो ऐड करते हैं नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देन नीचे चाहिए तो लिख देती हूँ व्हाट इज नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम is equal to नॉन, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो नहीं है वो इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, you get the net non-operating income. So ये तो बताया मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। अभी व्हाट इज नेट प्रॉफिट, फुल फॉर्म में लिखती हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस income tax, net profit after tax is what? Net profit before tax minus income tax.
सो आई हैव फॉर्मेट को एकदम छोटा छोटा करके मैंने हर एक चीज बताया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, एवरीथिंग आई हैव, in short I have explained and given, which is already there in the format. Now our last revenue ratio is stock turnover ratio. Stock turnover ratio. What is stock turnover ratio? Stock turnover ratio हमें बताता है that how many times the stock is changing. That is how many times we have doing purchases. तो स्टॉक का लेवल मेंटेन करने के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मैंने ऊपर भी लिखाया है ना। व्हाट इज एवरेज स्टॉक? What is average stock? Average stock is equal to opening stock plus closing stock divide by 2, तो हमें एवरेज स्टॉक मिलेगा। बट व्हेन opening stock is not given in the question, opening stock is not given in the question, एवरेज स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं दिया तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज स्टॉक वी विल गेट। बट व्हेन इन द क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, द इन दैट सिचुएशन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। विद दिस द रेवेन्यू रेशियोस आर ओवर. Now what we will do, we will come to the combined ratios. Now I will explain you the combined, or what you call it, one more name is there for the combined ratio. It is known as composite ratio. It is also known as composite ratios. It is also known as composite ratios. So here what are the combined or composite ratios? When comparison is made, when comparison is made from both the balance sheet as well as the revenue statement, it is known as combined ratios. It is known as combined or composite ratios. Combined or composite ratios. Now let us see what all combined or composite ratios are there. So first one, let us see what is it. It is called as return on investment, or you can say return on capital employed. Return on capital employed. You all know what is capital employed. Capital employed मतलब asset side का total बोल सकते हैं या liability side का total, because both it is same only. दोनों का अमाउंट तो बैलेंस शीट में सेम आता है, लाइबिलिटी का टोटल भी सेम होता है, असेट का टोटल भी सेम होता है. सो यू से सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, बोथ द अमाउंट विल बी सेम. सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जो जब कोई बिजनेस में पैसा लगाता है, आप कैपिटल देते हो बिजनेस को, तो आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है. तो व्हाट आर यू गेटिंग इन रिटर्न. रिटर्न मींस प्रॉफिट. रिटर्न मींस
profit. मतलब when you are putting amount in, you are putting doing investment in business, when you're giving capital to the business, there are two type of capital. There are two type of capital. एक owners का capital है और दूसरा loan capital है. There are two types of capital. One is owner's capital, which is also known as shareholders fund, because owners in the company are shareholders, तो उसको हम shareholder fund भी बोलते हैं. और दूसरा है बोरोड फंड या लोन फंड. बिजनेस को सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा काफी नहीं हुआ, सफिशिएंट नहीं हुआ, तो बिजनेस क्या करेगा? इट विल ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम द मार्केट. बिजनेस विल ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम द मार्केट. नाउ ये पैसा लेकर सामने वाले को रिटर्न क्या देगा? What will they get in the return? वो रिटर्न कहाँ से पे करेगा? अब बोरोड फंड में, लोन फंड में इंटरेस्ट पे करेंगे. जब लोन लेंगे तो वो लोन में क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे. और शेयर होल्डर्स को क्या देंगे? डिविडेंड देंगे. करेक्ट? शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा एंड जिनसे लोन लेंगे मार्केट में से उनको इंटरेस्ट देंगे. तो इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या तो हम बोल सकते हैं इसको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट एंड टैक्स. सिर्फ इंटरेस्ट बोलेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमें जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिलता है ना फॉर्मेट में, हमें वो चाहिए. क्योंकि ये प्रॉफिट में हम पहले इंटरेस्ट देंगे, फिर टैक्स पे करने के बाद इसमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे. तो ये वो प्रॉफिट है जिससे इंटरेस्ट भी पे करना है और डिविडेंड भी पे करना है. तो ये प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ व्हाट यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, 1 minute, let me write it in the next line. Capital employed means sources of fund. ये तो समझ में आता है तुम लोग को. सोर्सेस ऑफ फंड मतलब ओन्ड फंड और बोरोड फंड दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा. अगर ऐसे भी नहीं, सोर्सेस ऑफ फंड भी नहीं समझ में आता है, तो ऐसे लिख सकते हैं ओन्ड फंड प्लस लोन फंड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस इज द फॉर्मूला. लेकिन इसको हम परसेंटेज में आंसर चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा. देन यू विल गेट द परसेंट आंसर इन परसेंटेज. सो दिस इज अ परसेंटेज रेशो. आपको पता चलेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कर पे, दैट इज लोन फंड और बोरोड फंड पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है. व्हाट इज द रिटर्न? हाउ मच परसेंटेज रिटर्न इज गेटिंग द बिजनेस इज एबल टू जनरेट. मतलब ये करके हमें पता चलेगा कि बिजनेस कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा पा रहा है इतना पैसा लगा के. दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ नेक्स्ट वन आई वांट टू स्टडी और आई वांट टू नो दैट रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड कितना है. आई वांट टू नो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड कितना है. रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड कितना है. प्रोप्राइटर्स फंड कितना है. रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड मतलब प्रोप्राइटर मतलब कौन? शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. और शेयर होल्डर को डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में मिलता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एक बार हमने टैक्स पे कर दिया तो उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट सारा का सारा शेयर होल्डर्स के लिए है. तो डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड. प्रोप्राइटर फंड मतलब क्या? प्रोप्राइटर फंड मतलब ओनर्स फंड. हु आर द प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर आर द ओनर्स. हु आर द ओनर्स इन द कंपनी? शेयर होल्डर्स. तो प्रोप्राइटर्स फंड अगर तुम लोग को कंफ्यूज हो रहा है तो प्रोप्राइटर्स फंड में ब्रैकेट में लिखती हूँ. प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड. प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड. डोंट गेट कंफ्यूज.
प्रोप्राइटर मीन्स द ओनर, तो ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स कंपनी में, तो उनका पैसा। नाउ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो पता है, yes, shareholders fund is also owners fund, shareholders fund is also owners fund. So now what we will do, यहाँ पे तुम लोग को अगर ओनर्स फंड, लास्ट लेक्चर में भी बताया है मैंने, ओनर्स फंड मतलब क्या है, इफ यू वांट मी टू रिपीट अगेन, ओनर्स फंड मतलब क्या, ओनर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल, शेयर, ये तो और सिंपल में शेयर कैपिटल में क्या आता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ वो, शेयर कैपिटल मतलब ओनर्स को शेयर कैपिटल में भी हक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हक है, तो ओनर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट, मतलब अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो लॉस भी आपको ही मिलेगा, fictitious assets and losses, that is known as owners fund. अब तुम लोग पूछोगे शेयर कैपिटल मतलब क्या, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये भी हो गया। तो ये हमारा सेकेंड वाला कंबाइंड रेशियो हो गया। कंबाइंड रेशियो मतलब क्या, नेट प्रॉफिट हमें रेवेन्यू स्टेटमेंट से मिलेगा, ओनर फंड हमें बैलेंस शीट से मिलेगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें रेवेन्यू स्टेटमेंट से मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉय दैट इज लोन फंड और ओन फंड और लोन फंड हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। मतलब कंबाइंड रेशियोस आर टेकन by both the balance sheet and the revenue statement, दोनों को देख के कंपैरिजन करते हैं, दोनों में से कंपैरिजन करते हैं। fictitious asset I had explained in the last lecture also, fictitious asset are imaginary assets, fictitious assets are actually losses, fictitious asset are losses, like for example profit and loss account, debit balance जो asset side में आता है, net loss, preliminary expense मतलब company formation expenses, underwriting commission मतलब underwriter is the one who guarantees minimum subscription of share but he does that for a commission, तो उसका commission is also a expense, पर वो सब हम असेट साइड में लिखते हैं क्योंकि एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते बिकॉज दोस आर बिगर एक्सपेंसेस, इसलिए हम उसको असेट साइड में शो करते हैं एंड दीज आर एक्चुअली लॉसेस और एक्सपेंसेस but we show it in the asset side, so they are called as fictitious asset, and fictitious means imaginary, means unreal, they are not actual assets but only shown in the asset side for some calculation reason we can say. Now after return on proprietors fund we will find out return on equity, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, नेक्स्ट हम निकालेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो, इक्विटी कैपिटल बोलो, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। सो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, द इक्विटी शेयर होल्डर्स को कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, तो पहले हम जब भी प्रॉफिट होता है तो मैं पहले इधर लिखती हूँ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, डिवाइड इक्विटी कैपिटल बोला है ना, डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटल, या तो आई विल राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, लेट मी राइट इट हियर द नेक्स्ट लाइन, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड
इंटू 100 इंटू 100। नाउ हम लोग ये इसमें तुम लोग पूछोगे व्हाट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये क्या है? तो व्हाट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स, so profit available to equity shareholders, let me write here the holder spelling fully. Equity shareholders, equity holders है, equity shareholders, equity shareholders. So what is profit available to equity shareholder? It is net profit after tax minus, सबसे पहले जब प्रॉफिट आता है ना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, बिकॉज यू मस्ट नो दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस while getting dividend and on repayment of their capital. तो सबसे पहले डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया तो पहले हम डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा है तो उसमें से डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। बिकॉज दो टाइप के शेयर होल्डर है, इक्विटी और प्रेफरेंस, जिसमें पहला हक किसको मिलता है डिविडेंड मिलने का? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो देने के बाद बचा हुआ सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो वो डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोला है। तो व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड वो भी मैं बता देती हूँ। व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? दैट आई विल शो यू। दैट इज इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस fictitious assets. So what is equity shareholders fund? It is equity capital, because equity shareholder को पूरे reserves, but that is profit में भी हक है, profit में हक है तो losses भी उनको ही मिलेगा। तो this when you do you get the equity shareholders fund। ये सब फॉर्मूलाज तुम लोग को ध्यान में रखना है, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। आई विल गिव यू दिस पीडीएफ ऑल्सो लेटर ऑन, so that you can go through and also go through the video recording, because this lecture is being recorded, so you can also go through the recording later on if you want to have any confusion, you can again go through the lecture if you forget anything। तो इसके बाद लेट अस सी द नेक्स्ट वन, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो है व्हाट? डिविडेंड पेड, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और कहाँ से उनको डिविडेंड देंगे। डिविडेंड देंगे फ्रॉम प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स, इक्विटी शेयर, इसको नीचे लेना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू 100। मतलब यहाँ पे डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये मैंने ऊपर लिखा है, ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड is profit available to equity shareholders. So
that is dividend payout ratio. So इसके बाद let us go to the next one. The next one is debt service ratio. The next one is debt मतलब borrowing. सर्विस में उनको क्या मिलेगा डेप्ट देने के बदले में? अगर डेप्ट मिल रहा है हमें, बोरोइंग्स मिल रही है, तो व्हाट विल वी गेट फॉर व्हाट? इफ आई give if I lend money to someone या फिर if I borrow from someone, what in exchange I have to give them? सो यहाँ पे मैं लूंगी नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या तो राइट हियर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. आई विल राइट हियर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये मैंने पहले भी लिखा है. ये क्या है? इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देंगे तो डिवाइड बाय इंटरेस्ट. फॉर्मूला क्या है कि जो प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उसको डिवाइड करना है इंटरेस्ट से, टोटल इंटरेस्ट से. जितना भी इंटरेस्ट पेएबल है, पे करना है, उससे डिवाइड करो तो हमें मिलेगा डेप्ट सर्विस रेशो. तो हमें मिलेगा डेप्ट सर्विस रेशो. देन वी विल गेट डेप्ट सर्विस रेशो. अब इसके बाद द नेक्स्ट वन इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो. डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो. डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो. तो इसका फॉर्मूला लेट मी राइट इन द नेक्स्ट लाइन ओनली, या फिर फ्रॉम हियर आई विल नाउ स्टार्ट. इफ इट इज रिक्वायर्ड आई विल गो टू द नेक्स्ट लाइन. सो यहाँ पे है कैश profits available for debt servicing, that is paying of the debt, divide by interest plus installment plus loan payable. या तो ऐसे लिखती हूँ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेबल. 1 minute आई एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. सबसे पहले लेट मी रिमूव द स्पेस विच हैज कम हियर. तो यहाँ पे कैश प्रॉफिट बोला है. कैश प्रॉफिट मतलब कैश प्रॉफिट इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर, एक मेरे को NPAT हमारा जो भी प्रॉफिट है उसमें ऐड करते हैं नॉन कैश items. Now what do you mean by non cash items? I will explain you. Non cash items. What are the non cash items? Non cash items are depreciation, जहाँ पे पैसा बाहर नहीं जा रहा. हम इसको एक्सपेंस तो मानते हैं, लेकिन ये एक्सपेंस में मनी इज नॉट गोइंग आउट, तो एक्चुअली हमारा प्रॉफिट्स कम नहीं हो रहा. तो यहाँ ऐसा एक्सपेंस तुम लोग सोचो क्या है. एक तो मैंने लिखा डेप्रीसिएशन, दूसरा क्या हो सकता है, गुडविल रिटर्न ऑफ. हम बोलते हैं हमारा रेप्यूटेशन का वैल्यू कम हो गया, पर एक्चुअली पैसा बाहर गया. गुडविल को राइट ऑफ किया हमने. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब क्या
दीज आर देखो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो हम पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं, फिर एवरी ईयर हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम उसको असेट साइड में दिखाते हैं हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को, फिर एवरी ईयर उसको पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। इसमें एक्चुअल में तो ये साल पैसा बाहर नहीं जा रहा है, तो कभी तो ये एक्सपेंस हुआ था जिसको हम विद इन द ईयर्स हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो सच एक्सपेंसेस आर called as non-cash items जहां पे money is not going out, like for example, so these are the examples of non-cash items। तो ये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट मतलब क्या, जो हम लोग इंटरेस्ट तो तुम लोग को पता है। इसके बाद व्हाट इज दैट, इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स क्या है, मीन्स इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन लॉन्ग टर्म लोन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अमाउंट टू बी रीपेड, लोन अमाउंट टू बी रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ड्यूरिंग द ईयर। देखो मैं तुम लोग को सारे फॉर्मूलाज करा रही हूँ, दैट एग्जाम में फॉर्मूला आया तो इसलिए आई एम डूइंग दिस। And tomorrow we will do sums, small sums based on these ratios. Now only two important ratios are left. उसके बाद all the ratios are done. तो दो important ratios बाकी है। One is debtor turnover ratio, debtor turnover ratio। Now debtor turnover ratio means कि हम लोग का डेटर जो है that is कितना, this actually shows the relationship, it shows the relationship between credit sales and debtors। मतलब हम लोग कितना नॉर्मली एवरेज हम कितना लोगों को क्रेडिट में सेल करते हैं, दैट वी अंडरस्टैंड कितना टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। ये हमें ये रेशो से समझ में आता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे हम एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज डेटर एंड बिल रिसीवेबल। नाउ यू विल से एवरेज क्या है, एवरेज डेटर्स या बिल रिसीवेबल, मतलब अगर क्वेश्चन में 2 इयर्स का डेटर दिया रहेगा तो ओपनिंग डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये दोनों में से दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, इसलिए मैं साथ में लिख रही हूँ डिवाइड बाय 2। मतलब एक एक करके दिखाऊं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। वन में लेट मी शो इट इंडिविजुअल। ये बिल रिसीवेबल यहाँ से निकाल देती हूँ, दोनों में नीचे एक दूसरे के नीचे आई विल शो हियर ओनली, आई विल शो बोथ ऑफ देम। सो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग, 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन है 2012 एंड 13, तो 2012 का डेटर ओपनिंग डेटर हो गया, 2013 का डेटर क्लोजिंग हो गया, डिवाइड बाय 2। सेम वे एवरेज बिल रिसीवेबल मतलब क्या, ओपनिंग जो वैल्यू दिया है ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग सेकेंड ईयर का जो दिया रहेगा दैट इज क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, तो दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज। नाउ
This is done. Now next one, agar if they ask something called as debtors, same इसी में आएगा ये A. This is इसी में I will write one more, that is debtors collection period. Now one last one is there after this, debtors collection period. Debtors collection period मतलब डेटर ऑन एन एवरेज कितने महीनों में, दिन में या वीक्स में पैसा चुकाते हैं. वीक्स कितना होता है 52, लेकिन 360 के बदले में 365 या 366 like it is given in the question. This divide by, because मैंने अभी सारे ये लिखा है, divide by debtor turnover ratio. Divide by debtor turnover ratio. दिस इज द फॉर्मूला. मतलब डेटर टर्नओवर रेशो का जो आंसर आएगा, अगर हमें डेटर्स कितना पीरियड का पैसा चुकाने में लगभग दिन लगाते हैं, हमें मंथ्स में चाहिए, तो हम लोग हमारा फॉर्मूला रहेगा 12 डिवाइड बाई DTR. सेम अगर हमें, यह मैं यहाँ पे दिखाती हूँ बिकॉज सारा एक साथ नहीं, मंथ्स में आंसर चाहिए, मंथ्स में आंसर चाहिए तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. डेज में आंसर चाहिए तो 360 अगर तो क्वेश्चन में दिया है, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, तो 360 को डिवाइड करो डेटर टर्नओवर रेशो के आंसर के साथ. और अगर हमें वीक्स में आंसर चाहिए, अगर हमें वीक्स में आंसर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर 52, सो 52 डिवाइड बाय DTR. दैट वे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम 360, अगर डेज का ये नहीं दिया है कितना डेज, तो हम 365 या 366 भी ले सकते हैं. 366 कब लेंगे, 366 हम लेते हैं व्हेन इट इज अ लीप ईयर, जब फरवरी में 29 डेज होता है, दैट हैपेंस वंस इन अ 4 ईयर, तो हम 366 डेज लेते हैं. एंड 360 डेज मतलब it is given in the question, we have done working capital questions, there they are given assume 360 days in a year. वैसे तो in a year how many days are there, does anyone know in a year how many days are there? There are how many days in a year? Yes, correct, 365 days in a year. Or if it is a leap year, how many days are there? If it's a leap year, कितने days होते हैं? Yes, correct, 366 days. But अगर क्वेश्चन में दिया हो assume 360 days in a year, तो हमें 360 assume करना पड़ेगा. 5 दिन को ऐसे हॉलीडेज समझ के 360 डेज अज्यूम करना पड़ेगा. देन वी गेट अ मोर एक्यूरेट आंसर, क्योंकि 365 मतलब 365 डेसिमल में आंसर ज्यादा मिलता है. 360 डेज ऐसा क्वेश्चन में कभी बोलेंगे तो उस हिसाब से वी विल हैव टू डू. नाउ नेक्स्ट वन, इसके बाद लास्ट वाला फॉर्मूला इज व्हाट, creditors turnover ratio. The last formula what we have is creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio का फॉर्मूला है, creditors कौन, जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, मीन्स वी परचेज गुड्स फ्रॉम देम, एक्सपेंसेस हम लेते हैं एंड पैसा नहीं देते, क्रेडिट परचेज. सो डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस, और क्या चीज हम लिखते हैं, बिल्स पेबल. बोथ आर सेम, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर सेम, डेटर एंड बिल रिसीवेबल आर सेम. ओनली डिफरेंस इज कि क्रेडिटर्स जब हम हमारे क्रेडिटर्स को जब साइन करके देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट साइन करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट लीगल इंस्ट्रूमेंट, दैट दिस डे वी विल बी पेइंग यू द मनी, देन इट बिकम्स बिल पेएबल.
Same with the bill receivable. When the customer signs and gives that so and so date he will be paying the money, that document becomes bill receivable. So यहाँ पे एवरेज क्या है, सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा है. एवरेज क्रेडिटर्स मतलब क्या, अगर सिर्फ 2 years का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट द एवरेज क्रेडिटर्स. ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, चलेगा ना, क्रेडिटर्स. And this is also creditors. Oh shit, सेम ही जगह पे आ गया. Creditors and here also creditors. That is here. And second bill payable का भी average निकालना है तो it will be the same. Average bills payable कैसे निकालना है, opening bills payable, opening bills payable. यहाँ पे मैंने प्लस ये नहीं लिखा है ना, प्लस साइन नहीं लिखा है, प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल. एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2. सो दिस इज डन. नाउ द लास्ट वन, इसी में एक और चीज आता है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. मतलब हम लोग हमारे क्रेडिटर को कितने पीरियड में पे करते हैं. सेम इसका फॉर्मूला, अगर हमें मंथ्स में आंसर चाहिए, अगर हमें मंथ्स में आंसर चाहिए तो हम लिखेंगे 12 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो. सो इधर लिखेंगे CTR. एंड अगर हमें डेज में आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 360, बिकॉज इन अ ईयर इफ इट इज अज्यूम दैट इज 360 डेज तो 360 लिख सकते. अगर वीक्स में आंसर चाहिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 52 डिवाइड बाय CTR. यहाँ पे 360 के बदले में वी कैन ऑल्सो राइट 365 डिवाइड बाय CTR, या we can also write 366 divide by CTR, depend upon the question कैसे पूछा है. सेम applies to dater also, 365 भी लिख सकते हैं और 366 अगर लीप ईयर है तो 366 भी लिख सकते हैं. तो दिस वे ऑल द रेशियोज आर डन. तो कितना रेशो है, ऊपर रेवेन्यू रेशो 5 है और कंबाइंड रेशो देयर आर 8 कंबाइंड रेशोज. सो in the next lecture we will be solving sums based on this. Okay, with this I end today's lecture.